Hello, CCA student. Welcome back to my YouTube channel, Manisha Gupta ACCA. So, with your love and support, I am again back with a new video. And in this video, we are going to discuss the question from section B of performance management. So, if you guys are preparing for upcoming attempt, that is the June 2026, this video is definitely going to be useful because as I used to mention in my previous video as well, that from variance topic, if you guys know the formula very well, it is very easy to grab the marks. Okay, so and how to remember the all the formula, I have already shared the tips in my previous video. You can check those video which is available on my YouTube channel at free of cost. So just check it out in the playlist available over there. All right, so this question which we are going to discuss today, before that we move toward the question, let me know in the comment box from where you guys are watching this video, so that I could get to know from where from which country I'm getting the lots of love, right? So let me know in the comment box from where you guys are watching this video. And in today's video, we are going to discuss the question named Romeo Company, which has been asked in December 2016. And this question is from the topic variance. So variance I used to consider very easy topics because once you remember the formula, once you remember the logic behind the formula, it is quite easy to grab the marks. And I have solved lots of variance question on my channel. You can check it out, that video as well. I don't used to charge any subscription, you don't need to pay any upfront cost for watching the video. So it's totally free, guys. It's totally free. So just you need to go over my channel. Just a second, I'm getting a call. So sorry everyone. So बीच में कॉल आ गई थी. So where was we? Okay, so हम लोग रोमियो कंपनी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे and this was from your section B of FY paper और ये क्वेश्चन आपका वेरिएंस टॉपिक से रिलेट करता है. सो यहाँ पे 5 रिक्वायरमेंट है और ये आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस पूछ रहा है. दैट्स ऑल राइट. पहले क्वेश्चन बैकग्राउंड पढ़ते हैं, देन वी विल अगेन बैक टू द रिक्वायरमेंट. ठीक है. सो रोमियो Company is a business which makes and sells fresh pizza from a number of mobile food vans based at several key locations in the city center. It offers a variety of topping and dough bases for the pizza, has a good reputation for providing a speedy services combined with a hot, fresh and tasty food to customer. Each van employee is chef who is responsible for making the pizzas to Romeo Company recipe and 2 sales staff who serve the customer. All purchasing is done centrally to enable the Romeo Company to negotiate the bulk discount and build relationship with supplier. So अभी तक what we understood, company used to make pizza and sell the same. ठीक है, वो भी मोबाइल वैन के थ्रू. तो छोटे छोटे वैन होते हैं, उसके थ्रू ये सेवरल लोकेशन में ये पिज्जा बना के बेचता है. और जब पिज्जा बनाते वक्त ये बहुत सारा वैरायटी ऑफ टॉपिंग, डो, बेसिस फॉर द पिज्जा यूज करता है. बिकॉज नो, सो व्हाट आई मीन टू से, इसका मेन काम है पिज्जा बनाना और पिज्जा का बेस से लेके जितना भी टॉपिंग वो डिफरेंट वे में करता है. सो दैट मीन्स ही इज लाइक, होता है ना, कस्टमर को एक डिफरेंट काइंड ऑफ वे में वो गुड्स को अवेलेबल कर रहा है. और इसका गुड रेपुटेशन भी है किस चीज के लिए, स्पीडी सर्विस के लिए. ठीक है, कंबाइंड विथ हॉट, फ्रेश एंड टेस्टी फूड टू द कस्टमर. ऑब्वियसली इतना वैरायटी डिजाइनिंग टॉपिंग कर रहा है तो टेस्टी फूड तो बनता है. सो इस वैन में एक शेफ है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पिज्जा टू रोमियो रेसिपी एंड 2 सेल्स स्टाफ है जो उस कस्टमर को सर्व करते हैं. ठीक है, ये वैन के थ्रू ही हर एक लोकेशन में जाके बेच रहा है.
ऑल परचेजिंग इज डन सेंट्रली मीन्स कोई भी डिसीजन लाइक मटेरियल परचेज करने का, लेबर हायर का, जो भी है, इट इज टेकन सेंट्रली। सेंट्रल में जो बैठा है मैनेजर वो लेता है, सो दैट कि दे कैन नेगोशिएट द डिस्काउंट इफ दे आर गोइंग टू बाय द मटेरियल इन द बल्क। ठीक है। Romeo Company operate a standard costing and variance system, and the standard cost card for the Romeo Company basic tomato pizza are as follow. Sorry, is as follow. So यहाँ पे एक टोमेटो पिज्जा का इंग्रेडिएंट, उसका वेट कितना यूज हुआ है हर एक इंग्रेडिएंट का, और इनफैक्ट उसका प्राइस वो दिया हुआ है। सो दैट मीन्स इट इज सिंपली ए कॉस्ट कार्ड वी कैन से फॉर द वन टोमेटो पिज्जा। और आपको ये चीज भी देखना होगा, एग्जाम में कॉस्ट कार्ड सिर्फ 1 यूनिट के लिए दिया है और 10 यूनिट और मोर देन दैट। ठीक है, बिकॉज हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे वहां पे समटाइम 1 यूनिट का मटेरियल का यूज हुआ रहता है, तो वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है इफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इज गिवन फॉर द 100 यूनिट और 1000 यूनिट। ठीक है। Now in month 3, Romeo Company produced and sold 90 basic tomato pizza and actual result were as follows. So यहाँ पे ingredient क्या क्या यूज हुआ और actual cost वो प्रोवाइड किया गया। इवन तो मंथ 4 का भी डेटा उन्होंने दिया, लाइक एक्चुअल रिजल्ट क्या था। इन मंथ 6 100 बेसिक टोमेटो पिज्जा वर मेड यूजिंग द टोटल 42 kg ऑफ इंग्रेडिएंट। सो मंथ 6 में आके हम लोग ने 100 बेसिक टोमेटो प्रिपेयर किया था यूजिंग द 42 kg ऑफ ingredient, means total में। A new chef at Romeo Company used expected amount of dough and house, but used less cheese and more tomato sauces per pizza than the standard. So obviously जो new chef था उसने mix change किया। मिक्स मतलब जो हम लोग ने डिसाइड किया था एक पिज्जा में इतना इतना मटेरियल यूज होगा, इसने ऊपर नीचे कर दिया। अब ऊपर नीचे करने का रीजन हो सकता है कोई मटेरियल सस्ता हो, कोई मटेरियल महंगा हो, सो महंगा वाले को कम यूज किया होगा, सो दैट की कॉस्ट कम पड़े और परफॉर्मेंस अच्छा दिखे, हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सो इट वाज नोटिस दैट द सेल्स ऑफ बेसिक टोमेटो पिज्जा हैज डिक्लाइन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। अब देखो ये अभी हम लोग जस्ट इवेल्युएट कर रहे हैं इस चीज को, एज दे मेंशन दैट, तो ये न्यू शेफ ने मिक्स को चेंज किया। मिक्स को इन द सेंस जो मटेरियल लग रहा था हमारा एक पिज्जा बनाने के लिए, उस मटेरियल हम लोग ने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था। सपोज फॉर एग्जांपल ऑयल है, मैदा है, उसमें सॉल्ट है, सो एक प्रोपोर्शन हम लोग ने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, ये इतना इतना क्वांटिटी यूज करेंगे एक पिज्जा बनाने के लिए। बट जो न्यू शेफ था उसने एक्चुअली डिफरेंट क्वांटिटी यूज किया, मतलब क्वांटिटी प्रोपोर्शन चेंज कर दिया एक पिज्जा बनाने के लिए। अब ये क्यों किया होगा, जैसे कि मैंने बोला कि उन्होंने ये करने का रीजन क्या है कि कोई मटेरियल सस्ता होगा, कोई मटेरियल महंगा, महंगा वाले को कम यूज किया होगा, सो दैट कि हमारा कॉस्ट कम दिखे। अब जो सस्ते वाले को ज्यादा यूज करेंगे, महंगे वाले को कम यूज करेंगे, तो क्वालिटी पे तो इम्पैक्ट आएगी। क्वालिटी पे इम्पैक्ट आएगी तो कस्टमर को तो मन अच्छा नहीं लगेगा, वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो वो सामान बिकेगी नहीं। सामान नहीं बिकेगी तो क्या होगा, हमारा सेल्स डाउन हो जाएगा। सो वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है, डिक्लाइन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन वगैरह का पार्ट है, सो लेट्स डू दैट। कॉस्ट में रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट वाज द टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर द मंथ 3। ठीक है, तो यहाँ पे मंथ 3 में मटेरियल क्या क्या, मटेरियल नहीं कहते, इंग्रेडिएंट कहते हैं, इंग्रेडिएंट क्या क्या यूज हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आती हूँ मैं फॉर्मूला में, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, या मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, ये चार्ट अगर याद करोगे तो सारा आपका फॉर्मूला याद रहेगा। सो मटेरियल प्राइस का सिर्फ चाहिए, सो दैट मीन्स योर एसपी इंटू ए क्यू, एपी इंटू ए क्यू। ठीक है, ये दोनों वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये ए और ये बी, सो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट किया, ए माइनस बी। ओके ओके,
सो अब हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो एसपी ईच मटेरियल का। सो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सो पहले इंग्रेडिएंट क्या क्या है वो देखती हूँ, जस्ट वेट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे वापस आते हैं, मंथ 3 का पूछ रहा है। सो वी हैव 4 ingredient used, that is the dough। तो मैं नीचे में क्या पूछा हुआ है, सो दे आस्क मिक्स एंड यील्ड एज वेल। सो एक काम करती हूँ, मैं पार्ट 1 और 2 को एक ही बार सॉल्व करती हूँ, ठीक है। एक ही बार चार्ट को कॉपी करते हैं। सो चार्ट को कॉपी करने के लिए मैं वापस से एक बार रेडी करती हूँ, वेट ना। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एसपी 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 और यहाँ पे इनटू डाल के ए क्यू, सॉरी यहाँ पे एपी होगा, इट्स माय फॉल्ट, एपी। ओके, सो 2 बार एसपी एसपी एपी देन ए क्यू, फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, ए क्यू, बट यहाँ पे क्या करेंगे, एस क्यू, ठीक है। सो ये ए, ये बी और ये सी। सो नाउ बी एंड सी का जो डिफरेंस होगा ये हमारा क्या होगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और ए और बी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, मटेरियल यूज वेरिएंस। अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे मैं परचेज इक्वल टू यूज का केस लेती हूँ, बिकॉज मैंने क्वेश्चन में कहीं पे नहीं पढ़ा कि उन्होंने क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करते हुए, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात की होती तो सेकेंड वाला केस पे हम लोग जाते, बट दे डिडंट टॉक अबाउट द क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसीलिए हम लोग फर्स्ट वाला केस यूज करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस मटेरियल यूजेस वेरिएंस होता है, और सेकेंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है। बट क्वेश्चन ने मिक्स और इल्ड की बात की है, राइट। अगर देखोगे तो मिक्स और इल्ड का ही पूछ रहा है। सो यहाँ पे एक और ऐड करेंगे, दैट इज एसपी इंटू एस मिक्स। नाउ ये हो जाएगा हमारा बी सी डी, ठीक है। सो क्वेश्चन ने 3 चीज पूछी हुई है हम लोग से, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, सी माइनस डी करके, देन मटेरियल मिक्स वेरिएंस, देन मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स एंड यील्ड। सो फर्स्ट वाला हमारा क्या है, यील्ड, और सेकेंड वाला डिफरेंस इज मिक्स। ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। सो नाउ यील्ड के लिए हो जाएगा ए माइनस बी और मिक्स के लिए बी माइनस सी, ठीक है। सो इन दोनों का डिफरेंस होगा यील्ड, इन दोनों का डिफरेंस होगा मिक्स, इन दोनों का डिफरेंस होगा प्राइस वेरिएंस, ठीक है। ये इतना हो गया। नाउ बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। सो देयर आर 4 kind of ingredient used for the one basic tomato pizza. So first में डो है, then we have a tomato sauce, then cheese, उसके बाद में हर्ब्स। ये 4 चीज मिलके बना हुआ, ठीक है। ओके, नाउ एसपी चाहिए। एसपी क्या हमारा, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। सो स्टैंडर्ड प्राइस कहाँ से मिलेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, सो हम लोग डायरेक्ट रेडीमेड प्राइस यहाँ पे रखते जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज 7.6 यहाँ पे 2.5 इंटू, अभी रखते हैं चीज का क्या है 20 इंटू हर्ब्स का क्या है 8.4 इंटू, ठीक है। और इसी को मैं सारे कॉलम में कॉपी पेस्ट करूंगी, बिकॉज सारे में एसपी है, सॉरी चारों कॉलम में नहीं, 3 कॉलम में, यहाँ पे तो एपी की बात हुई है। और आई थिंक एपी हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में मंथ 3 का पूछ रखा है, मंथ 3 एक्सेप्ट मटेरियल यील्ड को छोड़ के, ठीक है। दो तो हमारा ये मिक्स और प्राइस, ये इतना तो हमारा एटलीस्ट मंथ 3 का पूछ रहा है, राइट, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग एक्चुअल वाला ये मंथ 3 का यूज करेंगे। सो एक्चुअल प्राइस जो क्या दिया हुआ है, दैट इज 6.5
into then 2.45 into 21 into 8.1 into ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ इजी पार्ट्स हम लोग पिक करके फटाफट रखते जाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ओके सो यहाँ पे ए क्यू भी ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप देखोगे मंथ 3 में दे हैव प्रोवाइडेड कितना केजी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर द ईच मटेरियल और एक्चुअल प्राइस दोनों दिया हुआ है मंथ 3 में। इसको भी हम लोग फटाफट से रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो 18.9 ये क्या है केजी में, सो ये 6.5 क्या था डॉलर पर केजी और 8.9 क्या है केजी। सो केजी कैंसिल आउट होगी, ये हमारा कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.6, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 14.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। दैट्स इट, हमारा एपी इंटू ए क्यू आ चुका है। सो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे मॉनेटरी टर्म में। नाउ डन, ये पार्ट हो गया हमारा, ये वाला लास्ट का कॉलम का, ठीक है। नाउ ए क्यू, यहाँ पे भी तो ए क्यू चाहिए ना, वही वाला ए क्यू हम लोग को कॉपी पेस्ट करना चाहिए था यहाँ पे भी। सो सेम एज जो हम लोग ने ए पी इंटू ए क्यू में किया, यही चीज को यहाँ पे रख देंगे। सो 18.9 यहाँ पे 6.6, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हम लोग ने 18.9 यूज किया है, 6.6 बिकॉज ये ए क्यू और ये ए क्यू दोनों सेम ही रहेगा, ओके। और उसके बाद में क्या हमारा 14.5 और ये क्या है 2, ठीक है। तो ये करने के बाद अब टोटल करना पड़ेगा ना, तो है ना, यहाँ पे टोटल करते हैं सम। तो नाउ प्राइस वेरिएंस आ चुका विच इज टी माइनस डी। तो ये 7 है आपका। क्वेश्चन में डेसिमल प्लेस में तो नहीं पूछा हुआ है ना, इसको हम लोग राउंडिंग वो करते हैं डेसिमल प्लेस में, ओके 7.22 और ये क्या है पॉजिटिव, सो दैट मीन्स फेवरेबल। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन विल बी बी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डन। नाउ अब मिक्स की बारी, ठीक है। मिक्स के लिए अब हम लोग को एस मिक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी ऑलरेडी डन विद एस पी इंटू ए क्यू, बस ये एस मिक्स कैलकुलेट करेंगे और इसका टोटल जो भी आएगा ये हमारा मिक्स वेरिएंस दे देगा जब हम लोग बी माइनस सी करेंगे तब, ठीक है। अब एस मिक्स को ध्यान से समझो, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट कंफ्यूजन है और मिस्टेक होने का भी चांस यहीं पे रहता है और ये वाला एस क्यू में, ये दोनों जगह हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। तो एस मिक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन फॉर एक्चुअल मटेरियल यूज। क्या है, फिर से मैं बोलती हूँ, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन फॉर एक्चुअल मटेरियल यूज। अगेन, standard proportion for actual material use, standard proportion for actual material use। so actual material use क्या है, actual material use in the month 3 में हमारा 42 kg है। so total में इन चारों को मिला के हम लोग ने 42 kg यूज किया था। अब इस 42 को स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करेंगे। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन क्या है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के अकॉर्डिंग ये डो कितना प्रोपोर्शन में यूज होना था वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका प्रोपोर्शन डिवाइड बाय टोटल। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट लेंगे। सो डो का प्रोपोर्शन क्या था स्टैंडर्ड में 0.2 आउट ऑफ किस का 0.42 का। सो ये 0.42 केजी में इसमें 0.2 क्या है हमारा डो है, ये हमारा इसका प्रोपोर्शन बताता है। और एक्चुअल क्वांटिटी यूज क्या है 42 केजी, जो मंथ 3 का नीचे में फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा हो गया एस मिक्स फॉर द डो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे करते टोमेटो सॉस का। टोमेटो सॉस कितना यूज होना था एज पर स्टैंडर्ड, दैट इज 0.08, वो भी कितना में आउट ऑफ 0.42 है। सो 0.42 में हमारा 0.08 टोमेटो सॉस यूज होना था
एक्चुअल में कितना यूज किए थे केजी 42, सो 42 केजी को प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे भी वही करते हैं सेम चीज, चीज के केस में 0.12 डिवाइड बाई 0.42 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 40 सॉरी इंटू 42। यहाँ पे भी वही करती हूँ, तो 0.02 डिवाइड बाई 0.42 इंटू 42 केजी, ठीक है। ओके, तो अब इक्वल टू डाल देती हूँ मैं फटाफट से। यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, वो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने में मिस्टेक करते हैं और एक्चुअल यूजेस क्वांटिटी लेने में भी मिस्टेक करते हैं, सो बी केयरफुल है, बी केयरफुल। ये इंटू नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी इक्वल टू डाल देती हूँ, सो वैल्यू आ जाएगा। सो नाउ ठीक है, सो नाउ बी माइनस सी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी का टोटल माइनस सी कॉलम का टोटल। तो ये हमारा क्या आ गया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और ये नेगेटिव में है, सो ये क्या हो जाएगा, एडवर्स, ठीक है। सो पॉइंट में भी राउंड बैक कर सकते हैं, सो इट इज 38.14। क्वेश्चन में यह है डी ऑप्शन। सो 1 और 2 ऑलमोस्ट डन हो गया। नाउ 3 में क्या कहता है, व्हाट इज द मटेरियल यील्ड वेरिएंस फॉर मंथ 4। सो मंथ 4 में मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को देखना पड़ेगा, इन दोनों को देखना पड़ेगा, ठीक है। एसपी तो दोनों में सेम होगा, और रही बात एस मिक्स की, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये एस मिक्स में ये 42 की जगह हम लोग 45 लेंगे, यहाँ पे भी 42 की जगह 45 लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग मिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों अब नहीं चाहिए। अब हम लोग मंथ 4 का कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर पार्ट 3। सो अगेन 42 की जगह अब हम लोग 45 लेंगे, क्यों, क्योंकि एक्चुअल यूजेज अब यहाँ पे 45 है, पहले क्या था मंथ 3 में 42 था, ठीक है। एक्चुअल यूजेज क्या है 45, बस वही चेंज होगा, बाकी सब चीज सेम, बाकी सब चीज सेम। सो ये हमारा ये पार्ट हो गया। नाउ एसक्यू में आते हैं। एसक्यू भी ऐसा पॉइंट है जहां पे सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यस मिस्टेक करते हैं। वो क्यों, क्योंकि एसक्यू का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अगेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट मतलब क्या, ये बेसिक टोमेटो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, एक यूनिट ऑफ बेसिक टोमेटो पिज्जा बनाने के लिए उसमें डो कितना यूज हुआ है एज पर स्टैंडर्ड। सो एज पर स्टैंडर्ड तो 0.20 केजी यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 0.20 यूज करेंगे। अगेन एसक्यू क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सो ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। अब एक्चुअल प्रोडक्शन इन मंथ 4 एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया था हम लोग ने, प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 110 बेसिक पिज्जा। सो यहाँ पे 110 डाल देंगे, ठीक है। ये क्या हमारा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमको क्या देगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज 0.20 एंड रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन दैट इज 110, ठीक है। ये यहाँ पे भी हम लोग करते हैं ये चीज, टोमेटो सॉस के लिए भी करते हैं। टोमेटो सॉस कितना यूज हुआ था 0.08 और एक्चुअल प्रोडक्शन अगेन 110 किया है। यहाँ पे चीज कितना यूज हुआ है 0.12, एक्चुअल प्रोडक्शन 110 है, ठीक है। हाउस कितना यूज हुआ है 0.02 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन 110 हुआ। सो यहाँ पे अब हम लोग इक्वल टू रख देते हैं, इक्वल टू रखती हूँ मैं। नाउ आपका टोटल वैल्यू इतना आया, सो ए माइनस बी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, और ये आपका डन। अब ये पॉजिटिव में है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा फेवरेबल, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में हमारे पास 12 तो है, आई थिंक ये राउंड ऑफ हो गया है, सो अगर बैक करेंगे तो यस 12.25 ऑलमोस्ट आ ही रहा है। सो हमारा ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर फॉर द पार्ट 3। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपने देखा, अगर चार्ट याद है
ये आपका जो चार्ट है वो याद है तो फॉर्मूला भी इजीली आपको रिमेम्बर होगा और कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगा, कैलकुलेशन के पार्ट में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। आपने खुद देखा अभी। सो नाउ 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इन मंथ 5 रोमियो कंपनी रिपोर्टेड ए फेवरेबल सेल्स मिक्स वेरिएंस फॉर द बेसिक टोमेटो पिज्जा। सो मंथ 5 में उन्होंने मटेरियल मिक्स वेरिएंस फेवरेबल रिपोर्ट किया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड एक्सप्लेन व्हाई दिस वेरिएंस हैज अकर्ड। जैसे कि मैंने बताया ऊपर में भी एक्सप्लेन किया हुआ था कहीं पे भी कि उन्होंने मिक्स चेंज किया है करके, ए मंथ 6 था, ओके ओके। सो रीजन बताना है कि ये क्यों आया, है ना, ये फेवरेबल क्यों आया। जैसे कि मैंने बोला था, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये चारों इंग्रेडिएंट में सबसे सस्ता कौन है, सबसे सस्ता हमारा हर्ब्स है, और सबसे महंगा कौन सा है, सबसे महंगा आपका डो है ना। तो अगर हम लोग इसको ये प्रोपोर्शन, सॉरी मैंने वेट देख लिया, आई एम सो सॉरी, प्राइस तो ये है ना। सबसे सस्ता क्या है हमारा, टोमेटो सॉस विच इज 2.50, ठीक है। और सबसे महंगा क्या है, चीज महंगा। तो इस बेसिक टोमेटो पिज्जा में अगर हम लोग ये प्रोपोर्शन चेंज कर देंगे, केजी यूज, मान लो कि हम लोग ने ज्यादा टोमेटो सॉस यूज किया क्योंकि ये सस्ता था, तो सस्ता होगा तो ये वाला कॉस्ट, और जो महंगा वाला आइटम है उसको कम यूज किया, दैट इज द चीज। सो ओवर हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, सेविंग होगा, सेविंग होगा, क्योंकि यहाँ पे टोमेटो सॉस हमको एक क्वांटिटी में कितना यूज करना है, 0.08, वेरएज चीज 0.12 ज्यादा है। तो इसको कम करेंगे तो हमारा कॉस्ट ओवरऑल कम होगा, और वो कम आएगा तो फिर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा, वेरिएंस भी फेवरेबल आएगा, क्योंकि हम लोगों ने कॉस्ट सेव किया वो दिख रहा है। बट कॉस्ट सेविंग क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग मिक्स चेंज कर रहे हैं, मिक्स को चेंज कर रहे हैं, जो लेस एक्सपेंसिव है उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा रीजन है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, द प्रोपोर्शन ऑफ रिलेटिव एक्सपेंसिव ingredient used in production was less than the standard। जैसे कि मैंने अभी बोला यहाँ पे चीज महंगी है, तो चीज का प्रोपोर्शन हम लोग ने कम यूज किया, अब कम यूज करेंगे तो कॉस्ट कम आएगा, कॉस्ट कम आए तो फेवरेबल वेरिएंस आना निश्चित है, ठीक है। प्राइस पेड फॉर इंग्रेडिएंट यूज इन द मिक्स वाज लोअर देन द स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एसपी दोनों में सेम है, यहाँ पे पेड से कोई मतलब ही नहीं है मिक्स वेरिएंस का। मिक्स वेरिएंस क्यों, सॉरी मिक्स वेरिएंस हमारा यहाँ पे एक और था ना, एसपी इंटू ए क्यू, यस। अब मिक्स वेरिएंस इन दोनों का डिफरेंस है, राइट। सो एक्चुअल प्राइस पेड से यहाँ पे मतलब ही नहीं है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आना दैट मीन्स हम लोग ने मिक्स में चेंजेस किया, और मिक्स क्यों चेंज किया, बिकॉज कोई महंगा आइटम होगा उसको उसका यूज हम लोग ने कम कर दिया सो दैट कि हमारा कॉस्ट कम आए। तो बी तो ऑब्वियसली नहीं है। सी क्या कहता है, ईच पिज्जा यूज लेस ऑफ द ऑल इंग्रेडिएंट इन द एक्चुअल प्रोडक्शन देन एक्सपेक्टेड। सो ये भी हमारा रीजन नहीं बनता है मिक्स वेरिएंस क्रिएट करने का। एक्चुअल प्रोडक्शन में हम लोग ने लेस सारे आइटम को अगर लेस करेंगे तो मिक्स वेरिएंस फेवरेबल नहीं आएगा, ठीक है। सो ये भी एक रीजन नहीं बनता है हमारा। And the last is more pizza will produce than expected given the level of ingredient input। अगर more pizza produce करेंगे तो हमारा more आउटपुट आए ना, वो तो इम्पैक्ट इधर क्रिएट करेगा। यहाँ पे तो हम लोग ने आउटपुट में कहीं पे देखा कुछ निकाला ही नहीं है, राइट, ठीक है। सो इसीलिए ये मिक्स वेरिएंस को नहीं क्रिएट करेगा। मिक्स वेरिएंस क्यों क्रिएट हो रहा है, हम लोग प्रोपोर्शन को चेंज कर रहे हैं। इवन तो आपने मोर पिज्जा प्रोड्यूस किया, हो सकता है मोर एक्चुअल यूजेस किया केजी वाइज, बट स्टिल हम लोग प्रोपोर्शन चेंज करेंगे तब भी ये मिक्स वेरिएंस आएगा। प्रोपोर्शन मतलब एज पर स्टैंडर्ड क्या था, कितना यूज होना था वो मटेरियल और हम लोग ने कितना यूज किया, तब तब मिक्स वेरिएंस आएगी। सो ये भी आपका रीजन नहीं बनता है। नाउ लास्ट B5 नंबर, वो क्या कहता है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन अबाउट मंथ 6 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, सो मंथ 6 का जो इंफॉर्मेशन दिया था उन्होंने पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। ओके, the actual cost per pizza in the month 6 was lower than the standard cost per pizza। so यहाँ पे उन्होंने क्या क्या हमको दिया था, इन month 6 100 basic tomato pizza were made using total 42 kg of ingredient
A new safe at Romeo company used the expected amount of dough and herbs but used less cheese and more tomato sauce per pizza than the standard. अब देखो यहाँ पे उन्होंने लेस चीज यूज किया और मोर टोमेटो सॉस। ऐसा क्यों? क्योंकि चीज महंगा था। अगर आप देखोगे चीज की प्राइस 20 थी, इसीलिए इन्होंने कम यूज किया, और सॉसेस सस्ती है इसीलिए उन्होंने ज्यादा यूज किया। सो ऑब्वियसली हमारा एक्चुअल कॉस्ट तो लो ही आएगा ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रपोर्शन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे जो मटेरियल एक्सपेंसिव है उसका यूज कम कर रहे हैं और जो लेस एक्सपेंसिव है उसका यूज ज्यादा कर रहे हैं। सो ठीक है, सो ये ऑब्वियसली फर्स्ट सेंटेंस तो हमारा करेक्ट है, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट पर पिज्जा इन मॉन 6 वाज लोअर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर पिज्जा। व्हाई? बिकॉज एक्चुअल जो मॉन 6 में रीजन एक्चुअल कॉस्ट लेस आने का है कि वो उन्होंने चीज कम यूज किया था और चीज हमारा एक्सपेंसिव था इसलिए। तो 1 करेक्ट है, इसका मतलब ए और डी ऑप्शन तो आउट, यानी बी और सी में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2 और 3 में से कोई एक राइट आंसर होगा। सेल्स स्टाफ शुड लूज देयर मॉन 6 बोनस बिकॉज ऑफ द रिड्यूस सेल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द सेल्स स्टाफ शुड लूज देयर मॉन 6 बोनस बिकॉज ऑफ द रिड्यूस सेल। अब देखो इन्होंने मिक्स चेंज किया, चीपर क्वांटिटी का मटेरियल ज्यादा यूज किया, सो इसकी वजह से क्वालिटी में इम्पैक्ट आई तो हमारा वेस्टेज भी ज्यादा हो सकता है और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था वो कस्टमर ने उसको अच्छा नहीं लगा कस्टमर को, इसलिए सेल्स कम हुई। सो ये इफ हमारा ये सेल्स रिड्यूस हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सेल्स स्टाफ ने काम नहीं किया। रिड्यूस सेल्स हमारा मिक्स वेरिएंस से भी रिलेटेड है। अगर मिक्स हमारा फेवरेबल ला रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग ने चीपर क्वालिटी ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्वालिटी में इम्पैक्ट आई तो कस्टमर ने वो सामान नहीं किना और नहीं खरीदा तो सेल्स रिड्यूस होगा ही। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, ओके। द वैल्यू ऑफ द ingredient uses variance and the mixed variance are the same. ओके, सो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। ओके, तो ये मॉन 6 का था। ओके, दैट्स फाइन। सी, इन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पे? द वैल्यू ऑफ इंग्रेडिएंट यूजेस वेरिएंस एंड द मिक्स एंड वेरिएंस आर द सेम। अभी सेम की बात क्यों कर रहे हैं? यूजेस वेरिएंस हमारा मिक्स एंड इल्ड का सम है। सो अगर हम लोग मिक्स एंड इल्ड का सम करें तो हमारा यूजेस वेरिएंस आता है, और ये सेम होने का रीजन क्या बोल रहे हैं? सी, मॉन 6 में एक्चुअल मटेरियल यूज कितना हुआ है? 42 kg, और फाइनल आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया है? 100। ठीक है, बट या इफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए, एक टोमेटो पिज्जा के लिए कितना यूज होना चाहिए इंग्रेडिएंट? 0.42। दैट मीन्स इफ हम लोग 100 पिज्जा बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितना यूज होना चाहिए? 42 kg। सो 42 kg यहाँ पे भी यूज है, यहाँ पे भी यूज है, इसीलिए सेम है, इसीलिए मिक्स एंड यूजेस वेरिएंस हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है आपका। और लास्ट उन्होंने बोल रखा है न्यू सेफ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल प्राइस मिक्स एंड इल्ड वेरिएंस। नो, जो सेफ होगा उसको प्राइस वेरिएंस से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, उसको किस चीज से मतलब होगा? उसको बस मिक्स एंड इल्ड से मतलब होगा। ठीक है, उसको प्राइस से मतलब नहीं है। प्राइस कौन कंट्रोल कर रहा है? परचेज मैनेजर। सेफ को तो मतलब नहीं है, तो इसीलिए हमारा 4 वाला इनकरेक्ट है। आई होप क्लियर हुआ होगा, इफ नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑलरेडी इट हैज बीन ट्रेन हियर, सो आई नीड टू स्टॉप द वीडियो नाउ। If कोई query concern है, you can ask directly in any of my social media platform or comment box. I will try my best to address your query and concern. Thank you so much. Have a good day.